Number 17. Psalm 17 is a heartfelt prayer of David expressing his plea for divine justice and protection against his enemies. It is a psalm of lament and trust combining elements of personal devotion, moral integrity, and confidence in God's righteous judgment. The psalmist appeals to God as the ultimate judge who discerns the truth and vindicates the innocent. Psalm 17 stands as a profound reflection on the relationship between human righteousness, divine justice, and the assurance of God's presence. So, Psalm number 17, as I told you yesterday, it is a personal, it is a heartfelt prayer. It was done by David. And it is a personal prayer where he explains about his innocency. मैं कुछ गलत नहीं किया, आपने मुझे परख कर देखा था लेकिन कुछ नहीं मिला, कुछ गलत नहीं मिला. लेकिन even though all these things he is saying, but the situation, the context is he is going through kind of a tension and struggle in his life. Maybe that we will see in the next part, context and history thing. So this is a personal psalm. It was done by David. It was his heartfelt prayer. Here also he is appealing to God and is trusting in God by saying that God, you are righteous, and when you do a judgment, you will do with your divine knowledge. And he is saying, I am innocent in this matter. I did not do anything. You know me. Yesterday I told 3 verbs. Verse 3. You have tried me, you have tested me, and you have visited me. So परमेश्वर आप इतना सारे चीजें मेरे जीवन में करके देखा, कुछ मिला, कुछ गलत मिला करके वहां लिखा. So he is opening his heart and telling to God, I am going through this kind of a situation, tension and hardship, but you have done what all the things you can done with me, and you did not find anything, but I am going through this thing. That's why in verse 1 he says, attend to my cry. So this is a heartfelt prayer of David. Authorship, as it is written there, it is a prayer of David, and the heading says, in the shadow of your wings. Your means God. इधर your लिखा है God के बारे में. Then the superscription attributes Psalms to David. ये heading, superscription का दूसरी मतलब है heading. The heading already gives an idea about it was written by David. Situating within the corpus of Davidic psalm. As many psalms, the specific historical circumstances are not explicitly stated. जैसा बाकी भजन संहिता के बारे में पढ़े थे, सीधा जैसा अब्शलोम से भागने का समय ही लिखा गया करके वहां हेडिंग में नहीं है. So we don't know what is the exact historical evidence, लेकिन we'll try to find out. So in the second para, several scholars says that maybe it was the David prayed when he was fleeing from Saul or when he was fleeing from Absalom. So maybe, most probably, Saul or Absalom का समय में दाऊद ने इस भजन को, इस प्रार्थना किया. वहां उन्होंने बताया है, आपने मुझे परख कर देखा, टेस्ट किया, कुछ गलत नहीं मिला. वो वचन को लेकर अब्शलोम एंड सौल का संदर्भ में कनेक्ट करके देखा तो कौन सी संदर्भ में दाऊद डिड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग. साउल का समय में क्या गलती किया था? What is the wrong thing he committed during the time of Saul? History should speak. शाऊल इसका पीछे भागने का कहानी का वहां का कोई कहानी कितने लोगों को याद है? क्या करने से इनका पीछे पड़ा था शाऊल ने? अब्शलोम का वो विद्रोह So in which sense you can connect this? Most probably 99.9% ये है करके बोलने के लिए दोनों कॉन्टेक्स्ट से कौन सा होगा? क्योंकि दाऊद ने तीसरा वचन में बताया, आपने मुझे परख कर देखा, कोई गलत नहीं मिला. उदाहरण, तामार के साथ जब गलत हुआ था, दाऊद ने चुपचाप बैठा था. तामार नहीं, अब्शलोम इसके पीछे पड़ने का कारण क्या था? वही है, तामार ही है ना. हाँ,
बेशेवा के साथ जो हुआ, दाऊद ने लिखा भजन संहिता 51, क्योंकि उन्होंने सीधा कबूल कर दिया मैंने गलत किया, क्योंकि नेतन ने आकर बोला। इधर वचन 3 में लिखा है मैं कुछ गलत नहीं किया। मे बी मोस्ट प्रोबेबली by if you are analyzing the literary context and verses, you can connect it with the time of Saul, क्योंकि परमेश्वर ने इनको गोलियत को मारने के लिए मौका दिया था, मारा, उसके बाद इनका नाम बढ़ते जाते हुए देखकर शाऊल को क्या हुआ था, गुस्सा आया था। ऐसा शाऊल ने इसका पीछे पड़ा था मारने के लिए। मे बी वो टाइम पे दाऊद ने प्रार्थना करके बोला होगा मैंने कुछ गलती नहीं किया, आपने जो बोला मैंने किया परमेश्वर, लेकिन मेरा संदर्भ ऐसा है। अब्सलोम का समय शायद नहीं बोल सकता है, शायद probably he can't say during the time of Absalom. Why? खुद का घर पे ही बहुत गलत बातें हुआ and he was silent because he don't know in what decision he have to take. किसको मारना था, तामर के साथ गलत किसने किया, सो खुद का घर का अंदर कुछ समस्या हुआ, चुपचाप था दाऊद ने। सो मोस्ट प्रोबेबली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ साउल। बट व्हेन वी से ड्यूरिंग द टाइम ऑफ साउल, वहां एक शादी का बाद में भी कुछ गलत हुआ था। पहला जो शादी का रिश्ता आया उन्होंने मना किया, जब दूसरा रिश्ता आया उन्होंने क्या किया, लड़की के लिए दूसरा फिलिस्ती लोगों को मार के आया। सो इन बोथ वे कुछ तो है, लेकिन मे भी गोलियत को मारकर इनका नाम बड़े होने का समय ये बातें उन्होंने लिखा होगा, मे बी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ साउल। सो दैट इज इन 1 Samuel chapter 18-26. So historically, Psalm 17 reflect the worldview of ancient Israel, where God was understood as the supreme judge. So when you read Psalm number 17, it points to one more thing that is all about the ancient Israel. Israel का पुराना कहानी को जोड़ते हुए बताता है, where God was portrayed as the righteous judge. धार्मिकता में, सच्चाई में न्याय करने वाला जज परमेश्वर है करके भी हम इस भजन संहिता पढ़ने के समय समझ सकता है। कैसा, क्योंकि दाऊद ने बोला मुझ में कोई गलती नहीं है, लेकिन आप कैसा न्याय करता है मुझे पता है। देन लिटरेरी स्ट्रक्चर वर्सेस 1 and 2, देयर इज अ प्रेयर फॉर द राइचियस जजमेंट। अपील मींस विनती, अपील मींस विनती कर रहा है। राइचियस जजमेंट मतलब परमेश्वर आपका धार्मिकता में न्याय करना, इस समस्या का ऊपर इस संदर्भ में करके प्रार्थना कर रहा है। समस्या क्या है, संदर्भ क्या है, शाऊल पीछे मैंने शाऊल के बारे में बोला क्योंकि मुझे वो अच्छा लगा, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में देखा तो किस कॉन्टेक्स्ट में शाऊल दाऊद का गलती नहीं है करके हम देखा तो इन विच कॉन्टेक्स्ट ही डिड नॉट कमिट एनी सिन, मोस्टली माय माइंड विल कनेक्ट टू ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शाऊल, because Absalom's time it is that story is very tragedical story. The things are happening in his home and he is not able to take a right decision. So how can he go and sit in the presence of God and pray, Lord, I did not do anything wrong. He did not do anything wrong because he was a king. King has a authority to take decisions. न्याय करने का authority किसको भी था, but he did not do, क्योंकि खुद का घर पे ही खुद ही वो गलती किया था। सो वर्सेस 1 and 2 अपील फॉर गॉड्स राइचियस जजमेंट। वर्सेस 3 to 5 ही इज डिक्लेयरिंग अबाउट हिज इनोसेंसी। व्हाट इज मीन बाय इनोसेंट इन हिंदी? मासूम था, मेरा जीवन निर्दोष, मैं निर्दोष हूं करके कौन बोला? ओ पंडित निर्दोष है करके बोल रहा था उन्होंने, मेरे मुझ में कोई गलती नहीं है, वो ऐसा बोल रहा था। परमेश्वर आपने चेक करके देखा फिर भी कोई कोई दोष नहीं मिला। पॉइंट नंबर 2, 3 to 5, 6 to 9, there is a petition for divine protection. Petition means petition, this word का मीनिंग मैंने एक्सप्लेन किया था। Pray. Petition means you know already these are the facilities that I will get and you are going with a विनती, एक पत्र लिख के जाता है, you know that these are the facilities I have and I have the right to get this. मैं बोला था petition के बारे में, it is not simply a prayer. अभी फोन लेकर किसको फोन कर रहे हैं? फोन बंद करवाना पड़ेगा शायद। So petition means
I know that I have right to get these facilities and I am giving a petition. समझ आया? For example, हमारा कलिसिया के किसी ने तोड़ दिया था, हम पुलिस स्टेशन में क्या लेके जाता है? We'll go with a petition. This is not an appeal. We'll go with a petition because we know I have all the right to preach the word of God. अभी समझ आया petition का संदर्भ क्या है? इधर दाऊद को पता है I have the inheritance from above, so he is giving a petition for what? Divine प्रोटेक्शन। अंबानी अदानी का कार जाने के समय इजर सिक्योरिटी पे पुलिस लोग उसके पीछे जाता है, देखा? नरेंद्र मोदी जाने के समय इजर सिक्योरिटी, ऐसा बोलते इजर सिक्योरिटी एक सिक्योरिटी, बिकॉज दे हैव द राइट टू गेट दैट। वैसे ही दाऊद इधर प्रार्थना कर रहा है, मेरे लिए डिवाइन प्रोटेक्शन का जरूरत है, वो मुझे मिलेगा, मुझे पता है, इसलिए क्या कर रहा है? ही इज गिविंग ए पिटिशन टू गॉड। 10 to 14 he is speaking about those who are persecuting him, how they are behaving, how their character is, their arrogance, which means they are speaking bad things about, or they are speaking the false news about David, even they are not listening to him। कुछ लोग होता है ना, बक 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 बोलते रहता है, हम कुछ बोला तो भी नहीं सुनेगा। वैसे ही arrogance, बोल दिया ना मुझे कुछ सुनने की जरूरत नहीं। कभी कभी मैं भी ऐसा हो जाता हूँ, क्योंकि हमको आगे वाला कहानी क्या है पता है, इसलिए फुल स्टॉप। Verse 15, in the end again the same style, he started with a cry, petition, prayer, it ends with the word of confidence। समझ आए लिटरेरी स्टाइल? शरण सर ने बोल रहा था, सार ने जब जॉनरे के बारे में बोला, आप लोग बोला आप लोगों को पता नहीं है। भजन संगीत 1 से लेकर मैंने बोल के आया था, जनरे नहीं है, जॉनरे है, लिखने का स्टाइल तरीका करके बोला था, याद नहीं है? सर ने बोला आपका बीच में से कोई भी उत्तर नहीं मिला दिया। सर ने बता दिया, आप सर ने पूछा था आप लोगों से जॉनरे पता है? सर ने बोला ऐसा बेटा थे क्या है? भजन संगीत 1 से लेकर हम ये शब्द को लेके आ रहे हैं, ये जनरे नहीं है, जॉनरे, विच मीन्स इन ए सिंपल वे, लिखने का तरीका सिंपल वे में बोला हो। तो सर ने क्या सिखाया? मैं सिखाने के बाद वो पूछा तो वो भूल गया, वो सिखाने के बाद मैं पूछा तो ये भूल गया। सर ने वही बोला, मतलब लिखने का तरीका, स्टाइल। फॉर एग्जाम्पल भजन संगीता बाइबल में देखना, वचन का बीच में बहुत गैप आता है, सो दैट इज ए लिटरेरी जॉनरे। देन टेक्सचुअल एंड लिंग्विस्टिक एनालिसिस, हियर ए जस्ट और लॉर्ड, ब्रैकेट में दिया इन्वर्टेड कॉमा में, uses the Hebrew term tzedek, meaning righteousness or justice. The psalmist's plea is not merely for personal relief, but for divine vindication based on the moral truth. When this psalmist is writing this psalm, he is speaking and he is justifying about his character and his life and saying, I did not do anything wrong and I am not saying this. You have tried me, you have tested me, you have visited me and found nothing. So you have to do these things for me. You got my point? It is written there. Read verse 1. Read verse 1. हे यहोवा परमेश्वर, सच्चा के वचन। In English. Hear a just curse, O Lord, attend to my cry. Give ear to my prayer, for lips free of deceit. So here a just cause, comma, O Lord. O Lord की साइड पे देखा जी लिखा है, नीचे जाकर जी देखना। O Lord, attend to my cry! Exclamation mark. Give ear to my prayer, from lips free of deceit. कैसा बोल रहा है? खुद के बारे में उन्होंने बोल रहा है, he is speaking about his own lips. He is saying, you have to hear to my prayer. Why? There is no deceit on my lips. इसका मतलब ये जो संदर्भ के बारे में सोच के देखा था, David is saying, I did not do anything wrong. That's why God, you have to hear to my prayer, to my cry. Why? The reason is there is no deceit on my lips. Verse 2, from your presence let my vindication come. Then he is giving it back to God. परमेश्वर मैंने इतना तो बोला, but आप बताना
मैं क्या हूं, मैं कौन हूं। पढ़िए वचन 2 का हिंदी। नहीं, हिंदी नहीं पढ़ना, उसका मतलब शायद नहीं है। देन वर्स 3 में देयर इज वर्ब टेस्ट, विजिट एंड ट्राइड, और वहां नाइट करके लिखा है। मोस्ट प्रोबेबली नाइट का समय में, अकेला होने के समय खुद के बारे में एग्जाम करने के लिए मौका है हमको, मैं आज सुबह से लेकर क्या क्या किया। देन वर्स 8 to 9, कीप मी एज द एप्पल ऑफ योर आई, ईशान बात आइल, विच मीन्स वो संभालने का तरीका कितना गहरा है करके समझाने के लिए, क्योंकि हमारा बॉडी पार्ट्स में सबसे विद प्रोटेक्शन एक ऑर्गन है, वो क्या है, हमारा आईज। कुछ आने की वजह से, कुछ ऐसा आते आते ही ये दोनों ढक्कन क्या हो जाएगा, खुद बंद हो जाएगा। करके देखो, इट इज ऑटोमेटिक। कुछ आने के साथ तुरंत वो बंद हो जाता है। मतलब उतना प्रोटेक्शन इसको मिला। शरीर में मुख्य पार्ट भी कौन सा है, यही है, क्योंकि ये नहीं देगा तो कुछ नहीं देख पाएगा। इसलिए परमेश्वर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कैसा एक प्रोटेक्शन दिया, वैसे ही परमेश्वर मुझे भी प्रोटेक्शन करना करके कौन प्रार्थना कर रहा है। सो इसको बोलने के लिए इंग्लिश में एप्पल ऑफ एन आई बोलते, मतलब आई का अंदर, आँख का अंदर आए हुए एप्पल नहीं, इसको क्या बोलते हैं, नहीं, अरे इसका हिंदी आँख पुतली, आंखों के पुतली, मतलब उसको ऐसा परमेश्वर ने रचना किया, कुछ आने से वो खुद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। सो इन द सेम वे डेविड इज प्रेइंग। देन थियोलॉजिकल थीम्स, पॉइंट नंबर 1, डिवाइन जस्टिस एंड ह्यूमन इनोसेंस। डिवाइन जस्टिस एंड ह्यूमन इनोसेंस। It is not boasting about himself. He is speaking the truth about his innocence. What is meant by boasting? मेरा मुंह से कभी झूठ नहीं निकला करके घमंड की बातें नहीं कर रहा है। वो संदर्भ में खड़े होकर सोचना है। दाऊद बोल रहा है, मैंने इन चीजों में, गोलियत को मारने में, या उन्होंने शायद इस औरत लोग उनके बारे में स्तुति या बहुत बड़ा गीत गाया था, और बोलने के लिए मतलब ये होगा मैंने किसी से कुछ नहीं बोला ऐसा करने के लिए, लेकिन ये हुआ, शाऊल मेरा पीछे। वो संदर्भ में खड़े होकर देखना है। दाऊद ने कभी झूठ नहीं बोला करके हम नहीं बोल सकता है, अगर बोला तो भी स्थापित भी नहीं कर सकता, क्योंकि किया था वो संदर्भ में, वो पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में। यू हैव टू स्टैंड इन दैट पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट एंड थिंक डेविड इज सेइंग देयर इज नो डिसीट ऑन माय लिप्स, सो आई नीड प्रोटेक्शन। ये जेड सिक्योरिटी का और वाई सिक्योरिटी से बढ़कर है ये वाला सिक्योरिटी। कुछ आने से ऑटोमेटिक आ जाता है, प्रोटेक्ट कर लेता है। पॉइंट नंबर 2, डिवाइन प्रोटेक्शन एंड रिफ्यूज। ये ऊपर वचन को बांटते हुए हमने पढ़े थे। वचन 3 नंबर 3, द विकेड एंड देयर एरोगेंस। सताने वाला लोग उस समय भी सेम कैरेक्टर में भी है, आज भी ऐसे ही है। कुछ बोलने से सुनेगा, वो मारने के लिए निकल के आया, मार के ही जाएगा। कुछ बोला या नहीं बोला उसको कुछ लेना देना नहीं है। कल वो व्यक्ति ने बोल रहा था ना, ओम नमः शिवाय करके, हाँ, उल्टा मीनिंग। वो मुझे भी डाउट था, इसलिए मैं भी कुछ नहीं बोल सकता था, क्योंकि ठीक है वो छोड़ दो। पॉइंट नंबर 4, विजन ऑफ गॉड एंड एस्केटोलॉजिकल होप। अंत करता है, मेरे लिए तो आशा है, मेरा परमेश्वर मुझे बचाएगा। सो बाकी भजन संगीता का सेम स्टाइल में ही इस भजन संगीता को भी दाऊद ने लिखा। सो यू कैन कंपेयर दिस साम विद, ये जो भजन संगीता प्रचार करने के समय आप लोग भजन संगीता 26 देख सकता है, भजन संगीता 16 ले सकता है, भजन संगीता 36 ले सकता है, भजन संगीता 57 ले सकता है, और 73 भी ले सकता है, क्योंकि ये सारे भजन संगीता का लिखने का तरीका या ट्यूनिंग इज सेम। हिस्टोरिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड।
when we speak about cultural, historical background, we already know. Maybe during the time of Shaul or maybe during the time of Absalom. The psalm differential enemies surrounding. The psalmist reflect the realities of warfare in the political interior. So कल्चर के अनुसार कल्चर बैकग्राउंड देखा था, उनको पता है इसराइल लोगों का जीवन का, इसराइल लोगों का कहानी देखा था, where many times other nations came and fought with them. That's why he is praying that under your shadow of your wings I need protection. समझ आया? परमेश्वर आपका पंख की छाया, मुझे प्रोटेक्शन चाहिए. So you can take this as your as a cultural background. Then theological significance. कल मैंने क्या बोला था? Theological significance. कल कितने लोग लिखा था? How will it there? So, in a theological significance, Psalm 17 stands out for the combination of moral confidence and humble dependence. Moral confidence मतलब ये जो संदर्भ में मैं कौन हूँ, मेरा गलती है या नहीं, I have my own confidence. And David is saying that confidence I received इन थ्री verbs, इन थ्री अलग क्रिया की वजह से मुझे कॉन्फिडेंस मिला. What are the three क्रिया, three verbs? Verse 3. You tried me, you visited me, and you did not find anything. So I have that moral confidence about myself. I did not do anything wrong. Significance number 2. Even though it is like that, he is not boasting. He is humbly depending upon God. He is humbly depending upon God. थोड़ा post रखना. Then read affirm that true righteousness is relational. It flows from a heart aligned with God's will. The psalmist's ultimate hope is not merely deliverance from enemies, but communion with God. Point number 3. David is not only, or in this prayer, his importance is not getting a deliverance from the enemies, but he is praying, I need that communion with God. परमेश्वर आपसे और रिश्ता मुझे चाहिए. So 3 theological points: moral confidence, dependence upon God, a communication with God. And point number 4, it speaks about biblical eschatology. Eschatology means there is a hope. अभी मेरा संदर्भ ऐसा है तो अभी इस संदर्भ से मैंने वापस बाहर आऊंगा. So there is a future hope, eschatology. In a historical part, in Jewish liturgy, it is recited as a part of personal prayer for deliverance and for divine favor. Jewish लोगों का संदर्भ में, समूह में, खुद को कुछ चीजों से बचाने के लिए या नेशन को कुछ चीजों से बचाने के लिए, in order to get the deliverance as a nation, as an individual, they used to take this psalm and they used to pray. संगे पोस्ट निकाला था. They used to use this psalm. Then, in the present context, we can take this psalm and we can say, but we have to make sure we have that moral confidence. What is meant by that moral confidence here? मैं गलत नहीं किया करके पक्का confidence है तो, as the way David prayed, we can pray. Otherwise, in other psalms as he prayed, मैं मेरा गलती को समझ लिया, मुझे माफी करना, लेकिन मुझे मदद करना. Lord, I have understood what are the wrong things I have committed. Forgive me, but I need your protection. But here the tune is different. I did not do anything, लेकिन I need your protection. Application is the same. When a believer is going through kind of suffering, you can take this and speak in 2 ways. First, when you are going through this kind of suffering and hardship, 3 verbs याद रखना है. What are the 3 verbs? You have to think, did God, परमेश्वर ट्राई किया था, मैं फेल हूँ या पास हूँ? Am I fail and pass in the first क्रिया? क्या था फर्स्ट क्रिया? Trying. Second, when God visited me, fail or
Pass. Third, when God tested me, pass or fail. If all the answer is yes, you can pray as David prayed, or we can pray as David prayed. If not, ask for the forgiveness, then you can pray. You got my point? So you can take this and you can give it as a application to the present context when you are preaching. And most probably the second बात है होता है. Most probably we will bring issues into our life and we will struggle. Then conclusion, it is a profound expression of faith, integrity and hope. FIH, faith, integrity and hope दाऊद के जीवन से इस भजन संगीता में हम देखा. संगे फुल स्टॉप.